علی گڑھ کے شہدا کے بیچ میں عالموں کے بیچ میں ایک بڑا بہادرائی ہوئی، اس میں 73 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ پورے ہندوستان کی تمام مساجد کو آپ دیکھیے، کہیں پر بھی 73 قبریں ایک ساتھ، اور وہ بھی شہدا کی کہیں نظر نہیں آئی جو آپ کو علی گڑھ کی جامع مسجد میں نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے 1857 کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے بہت باریکی کے ساتھ اس کو غور کیا کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ تو ایک علی گڑھ میں 1823 میں مامو بانجے کے محلے میں ایک شخص پیدا ہوا، فرینچ تھا، اس کا نام جارج پیشور تھا۔ جارج پیشور بعد میں پولیس کا افسر بنا، ریواڑی میں پولیس آفیسر تھا۔ اس نے 1857 کے واقعات، حادثات اور حالات پر جب وہ باغپت کے ہرچند پور علاقے میں تھا، اسی وقت ایک غدر ہوا جس کو غدر کہا گیا، جس کو ہم ہندوستان میں آزادی کی پہلی لڑائی کہتے ہیں۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کس طرح سے کوشش کی، اور وہ اپنی ایک ڈائری لکھتا چلا جس کو روز نامچہ کہتے ہیں۔ اس نے شروع کیا باغپت سے، پھر وہ میرٹھ آیا، میرٹھ سے ہاپوڑ آیا، ہاپوڑ سے علی گڑھ آیا، علی گڑھ کے بعد میں یہاں حالات خراب تھے تو ایک سہنولی اترولی کے پاس گاؤں ہے، وہاں رکا، اور پھر وہ ہاتھرس گیا، ہاتھرس کے بعد آگرہ۔ وہ پہلا میرے خیال سے عینی شاہد ہے جس نے مولانا عبدالجلیل صاحب اور یہ 73 لوگ جو شہید ہوئے، جو اس نے 1857 کے غدر پر لکھی، جس کو ہم تحریک آزادی کا پہلا انقلاب کہتے ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا، اور ہمارے درمیان 3 بڑے عالم موجود ہیں، اتفاق سے تینوں قاسمی ہیں۔ یہاں لکھا ہے علی گڑھ جاؤ اور جا کے مولانا عبدالجلیل کے بچوں کو تعلیم حاصل ہو، یہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کی کوئی صداقت کا علم نہیں ہے۔ تو یہاں 3 ہمارے دیوبند کے عالم موجود ہیں، اس میں سب سے بڑے عبید اقبال عاصم صاحب ہیں جو مستقل کتابیں لکھتے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے دیوبند تحریک پر۔ دوسرے مولانا ریحان قاسمی صاحب کا تعلق بھی دیوبند سے ہے، اور اس وقت جو ہمارے اس مسجد کے جو امام ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ بھی دیوبند کے ہیں۔ تو میں درخواست یہ کروں گا کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ جو واقعہ انہوں نے لکھا ہے مسجد کے اندر لکھا، مسجد بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے، یہ واقعے کی کچھ حقیقت ہے بھی یا خواب و خیال کی دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، ایک شخص جس کو ہم سر سید احمد خان کہتے ہیں، وہ 1857 کی پیداوار ہے۔ 1857 کے انقلاب میں سر سید بجنور میں تھے۔ بجنور میں بہت زبردست جو حالات پورے ملک میں ہو رہے تھے اس کا ہوا، اور وہ کسی طریقے سے چھپتے چھپاتے ہوئے میرٹھ آئے۔ میرٹھ سے وہ دلی گئے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ گھوڑوں کے استبل میں چھپی ہوئی تھی۔ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، ان کے سگے ماموں کو شہید کر دیا گیا۔ ماموزاد بھائی کو جب عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اس وقت ان کو مار دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں سر سید نے 4 کتابیں لکھی۔ ایک کتاب ہے اسباب بغاوت ہند، وہ دنیا میں پہلی کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہوا، وائس رائے نے ترجمہ کرایا کیونکہ وہ اردو میں تھی، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا اور برٹش پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ اور اس میں یہ طے ہوا کہ جو کاز ہے، جو گڑبڑی ہوئی ہے، جو بغاوت ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ برٹش پارلیمنٹ میں پہلی کتاب پر بحث ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ہے وہ ختم ہوتا ہے، ملکہ وکٹوریہ کا راج شروع ہوتا ہے۔ خود سر سید نے مراد آباد کی مسجد بلاقی خاں میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس میں 14,000 لوگ موجود تھے، اور وہاں سے سر سید کی تحریک شروع ہوتی ہے، اسباب بغاوت ہند کے نام سے، لوئل ممبرس آف انڈیا کے نام سے، اور تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں سر سید نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ سر سید نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز جو قابض ہو رہے ہیں، جو اقتدار میں آ رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ تعلیم۔ تو انہوں نے کہا ہم تعلیم کے لیے سیاسی بازیاب کس طریقے سے ہم ایجوکیشن کو حاصل کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی۔
75 में एक छोटा सा मदरसा बनाया। सर सैयद का कोई ताल्लुक अलीगढ़ से नहीं था। वही मदरसा फिर 1877 में कॉलेज बना और सर सैयद के इंतकाल के 22 साल बाद यूनिवर्सिटी बना। आज पूरी दुनिया में सर सैयद के मानने वाले और चाहने वाले फैले हुए हैं और इल्म की रोशनी जो है वो फैला है। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ में किसी का है तो सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक का है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि 1857 की लड़ाई है बुनियादी तौर पर, क्योंकि इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ से गया था, तो वो मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई थी। और अलीगढ़ के अंदर ख़ास तौर से 3 बड़े आलिम मुझे नज़र आते हैं। एक है मौलवी अहमदुल्ला साहब। मौलवी अहमदुल्ला साहब इतने बड़े, जब वो आगरे में तकरीर करते 2-2 हज़ार लोग मौजूद होते, वो अलीगढ़ आते हैं और यहाँ खड़क सिंह उनको मदद करते हैं और किस तरीके से वो तहरीक का हिस्सा बनते हैं। सबसे बड़ा और मोतबर नाम जो है वो उनका है। एक मौलवी तस्लीमुल्लाह है जो इन्हीं कहकर मज़ारों में से एक मज़ार उनका भी है। लोगों को इल्म नहीं है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। हमने गंजान शहीदान के नाम से 1873 लोगों की कब्रें तो बना दी हैं, लेकिन हमें जलील साहब के अलावा किसी का नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि उसमें जितने नाम हो सके, मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से एक बड़ा नाम जो है जलील साहब के साथ वो मौलवी तस्लीमुल्लाह का है और उसके मुतालिक जो है इस आदमी ने जो आपको देखा है उसने भी जिक्र, तो इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। और इस वक्त हम लोग 1857 का जश्न याद बनाने के लिए जमा हुए हैं और 169 साल 169 साल हो गए इस वाक़े को। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुर्बानी इन लोगों ने दी है वो रायगा की जाए। मुल्क की इत्तेहाद, मुल्क की यकजहती, हिंदुस्तान में अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए 47 तक ये सारी मसाइल आए। 47 के बाद एक खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क या तरक्की में, उसकी तोसी में, उसके कंट्रीब्यूशन में हमारा क्या हिस्सा है। अगर हमने कोई हिस्सा नहीं लिया तो जंगल की घास की तरह हमें भी काट दिया जाएगा, और कटता है तो हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि हम अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें और एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। मुझे वो दिन याद है, इसी शहर में 1978-79 सब लोग जो मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त दंगे होते हैं और 1981 में सैयद हामिद साहब वाइस चांसलर थे। एक तालिब इल्म की पुलिस की गोली से शहादत हुई, उसका इंतकाल हुआ। उसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया। मिसेस गांधी उस वक्त हिंदुस्तान से बाहर थी, उनको ये पता चला कि वाइस चांसलर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि एक तालिब इल्म की बहुत अफसोसनाक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसकी वजह से इस्तीफ़ा दें। और सुबह यानी ये वाक़े के फ़ौरन बाद ही होम मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह, वो यहाँ आए। मुझे इस बात का इल्म है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता। VP सिंह उस वक्त SSP थे और राजीव तंशाह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। ये वाहिद ऐसा शहर था जिसका लिंक डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जुड़ा, होम मिनिस्टर से जुड़ा। अलीगढ़ बड़ा सेंसिटिव शहर रहा है और यहाँ बहुत सी वो चीज़ें रही हैं और आज उसकी कमान जो है हमारे कप्तान साहब संभाले हुए हैं। इनकी अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, दौलत, शौहरत दी है और बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं। मैं आमतौर पर इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, लेकिन क्योंकि आदमी का वक्त पता चलता है, इस वक्त इस जलसे के अंदर इनका शरीक होना इस बात को साबित करता है कि इनके दिल में दर्द है, इनके अंदर इंसानियत है और इनके अंदर एक मोहब्बत है। ये जो शहीद हुए हैं उनके प्रति इनको सही श्रद्धांजलि देने के लिए इस मस्जिद में, मेरे ख्याल से इस जामा मस्जिद के अंदर पहले ये SSP होंगे जिनको यहाँ मदऊ किया गया। आप खुशकिस्मत हैं जनाब, 150 साल की तारीख है। मैंने अभी कहा कि इस मस्जिद की 2 खूबियाँ मुझे नज़र आती हैं। एक, यहाँ कहा जाता है कि सोने का वो लगा हुआ है, इतना सोना जो है स्वर्ण मंदिर पे भी नहीं है, दुनिया की, हिंदुस्तान की क्या किसी मस्जिद में नहीं है जितनी बड़ी इस मस्जिद के अंदर। पहली चीज़। दूसरा ये कि आप पूरी दुनिया की मसाजिद की तारीख देख लीजिए, किसी मस्जिद में 73 बुजुर्ग जो है वो शहीद नहीं है, तो यहाँ शहीद है। मैं उनको खिलाफ यकीन और हमारे शेवन साहब को मुबारकबाद कि आपने इस मौके को बहुत अच्छा जलसा किया। और इस सिलसिले में मुझे ये भी कहना है कि सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ की तालीमी सूरत हाल पर एक रिसाला भी लिखा था
جس میں اس خاندان کا ذکر بھی ہے اور لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ علی گڑھ میں تعلیم کس طرح سے پھیلی. بہت بہت شکریہ. فرقان صاحب, ریحان اختر صاحب, ہمارے ڈاکٹر راحت ابرار صاحب اور امام صاحب ہمارے مولانا محمود حسن قاسمی صاحب, یہاں اور یہاں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا سب کو نام لیا جائے گا, بس سب کا استقبال کرتا ہوں. خیر مقدم. یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لوئیں مدھم کیوں ہے, یہ نہ دیکھو کہ چراغوں کی لوئیں مدھم کیوں ہے, ہم سے پوچھو کہ ہوا جشن چراغاں کیسے. آج ہندوستان جو ہے اپنا جشن آزادی منا رہا ہے, اور ہم 15 اگست کو ابھی بیتے دنوں 80 سال ہماری آزادی کے گزر گئے, اور اس آزادی کا جشن پورے ملک میں بلا فرق مذہب و ملت تمام شاہراہوں سے, مندروں سے, مسجدوں سے, گرودواروں سے ایک ہی آواز گونجی کہ جشن آزادی سب کو مبارک ہو. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج 1857 کے ان شہداء جن کی قبر اس جامع مسجد میں ہے, اور اس پروگرام اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی شاہی مسجد کے بلند مینار کے سامنے جو پولیس اسٹیشن ہے اس کا ایک جو ہے انتہائی رسپانسبل اور ذمہ دار منتظم لیڈر اور اس شہر کا ایس ایس پی جناب نیرج کمار جادون صاحب کر رہے ہیں, ہمارے لیے خوشی کی بات. کیونکہ قوموں کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ صرف اگر کتابوں میں محفوظ ہو تو صرف لائبریری کا حصہ بنا کرتی ہے, لیکن وہی کتاب, وہی چیپٹر, وہی لوگ ان شہداء کی قربانیوں کو جب ان چھوٹے چھوٹے بلاکس میں, ٹیبلز اور کارنر پر آنے والی نسلوں کو بتایا جاتا ہے تو یہی پھر ایک نئی تاریخ رقم کرتی ہے اپنے ملک کی تئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ جتنے بھی 1857 کا غدر, اس وقت جتنی بھی مسجدیں تھیں وہاں سے ایک ہی نعرہ بلند ہوا کہ ہم اس ملک میں انگریزوں کی وکالت اور ان کی حکومت نہیں چاہتے ہیں, اور تمام لوگوں نے اس کے لیے بھرپور قربانیاں دی. پڑھا لکھا آدمی ہو, ان پڑھ گوار, جو کھیت میں ہل اور کسان, تمام لوگوں نے کہا کہ نہیں, ایک پرندہ جو ہے, ایک کبوتر جو ہے اگر 2 دن ان پنجروں میں قید کر دیا جاتا ہے لیکن جب تیسرے دن اس کو کھولا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا کتنی بڑی ہے. 1 صدی ہم کو اس قید کر کے رکھا گیا, لیکن جب ہمارے بزرگوں نے, ہمارے ہم وطنوں نے, ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس ملک کو جب آزاد کرایا تو لگا کہ ہمارا ملک ایک خوبصورت دلہن ہے. تو آج ہم اس شہداء کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس مولانا عبدالجلیل علی گڑھی کا ذکر ہم یہاں پر کرنے کے لیے آئے ہیں وہ 46 سے نکلا, اور آپ کو پتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ رفیع الدین, شاہ محمد اسحاق سے اس نے علم اور علوم حاصل کیا. تمام چیزوں سے لیس ہو کر 1857 کا غدر مئی, جون, جولائی, اگست, اور کس طریقے سے اس نے اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ جو ہے تاریخ کی کتابوں میں جب میں کل پڑھ رہا تھا تو گھوڑ سوار بھی ہیں, پیدل بھی ہیں, بندوق اٹھائے ہوئے وہ جان دینے والے وہ افراد بھی ہیں, وہ یہیں آس پاس کے خطے میں اپنی جان کی قربانی دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بلا فرق مذہب و ملت, ہمارا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے ملک کی تئیں ہمارا وہی جذبہ ہونا چاہیے جو آج سے صدی پہلے تھا. کیونکہ جب تک ہم اس طریقے سے نہیں رہیں گے تب تک وہی سامراجی طاقتیں جو ہمارے ملک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی رہتی ہیں پھر وہی لوگ براجمان ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہمارے درمیان نیرج کمار
जादौन जैसा एसएसपी होगा तो हमें लगता है कि उनकी चीजें कामयाब नहीं होंगी। हमारे लिए खुशी की बात है कि यहाँ के मुंतजमीन आज उस शख्स के बारे में आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौलाना अब्दुल जलील अलीगढ़ी का कंट्रीब्यूशन रहा है। इस मुल्क को 1857 में सिर्फ उन्हीं की कुर्बानियां रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कैप्टन अब्बास अली जिनका अभी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, और इस शहर ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दो धाराएं हैं, दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन इस मुल्क की आजादी में है। मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर अली, ख्वाजा अब्दुल मजीद, राजा महेंद्र प्रताप, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने मुल्क की आजादी चाहते हैं। नारायण पंडित साहब जब यहाँ आए और उन्होंने वो पैगाम दिया अलीगढ़ को, और उसके तहत तमाम जेल से तोड़ करके इनकलाबी बाहर आ गए, जिसके तहत जो मैंने अर्ज किया तमाम अंग्रेज हुक्मरां कूच कर गए जो है आगरा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि फिर वो इजलास से एक मुखबरी हुई, जानते हैं लोग, इजलास से एक मुखबरी हुई आगरा में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ब्रिटिश हुक्मरां अलीगढ़ आना शुरू हुए। नतीजा क्या हुआ, नारायण पंडित का नाम सर फहरिस्त उनको पेश किया गया, और किसी तरह से नारायण पंडित को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में ठूसा गया, उनको बहुत सारी उनके पर अजियतें दी गई, टॉर्चर किया गया, और नतीजा ये हुआ इसी अचलताल के किनारे पर एसएसपी साहब पंडित नारायण को फांसी दी गई। शायद ये अलीगढ़ की पहली फांसी थी जो अंग्रेजों ने पंडित नारायण को दी थी। मैं अपनी जानिब से इस जामा मस्जिद की मीनारों की जानिब से, इसके आंगन की जानिब से आज पंडित नारायण जी को अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इसी सिलसिले में आगे चलते हुए एक और बड़े नौजवान मुकर्रिर हैं जिनका बहुत काम है, जिनकी बहुत किताबें हैं 1857 के इनकलाब के ऊपर, और मजीद जिन इनकलाबी लोगों का कारनामा है उनके ऊपर बहुत काम किया है। मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद साहब से है कि आप तशरीफ लाएं और मुख्तसर तौर से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब शाहिद साहब। 1857 तक पहली मुल्की जंग आज़ादी 10 मई 1857 कमोबेश 20 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन महारबाजी में 1857 की नौयत की एक मुनफरिद तहरीक थी जिसमें बिला लिहाज बिरादरान वतन, बादशाह, बेगम, नवाबीन, राजगान, उमरा, शोरा, उदबा, पंडित, उलमा और नौजवानों ने हिब्बुल वतनी के जज्बे से सरशाद हिस्सा लिया। इस तहरीक की सबसे बड़ी विरासत हिंदू और मुसलमान का कौमी इत्तेहाद था, जिसमें हिंदू मुसलमान भाईचारा और कौमी हमआहंगी के बेशुमार अनमोल मिसालें भरी पड़ी हैं। सन 1857 में बागियान अवध के मंदरजा झील पुरजोश नारों से फलक गूंज उठता था। दीन तो दुई दीन, हिंदू का धर्म, मुसलमान का ईमान, एक पिता के दुई पुत्र, एक हिंदू एक तुर्क, उनका चोली दामन का साथ। थॉमसन लिखता है कि दुख्तरकश पंडित, कट्टर ब्राह्मण, मुतासिर मुसलमान और ऐश पसंद तोंद वाला मनचला मराठा सभी जिहाद में शामिल हो गए। गाय का पुजारी, खंजीर से किराहत रखने वाला और खंजीर का गोश्त खाने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला और ब्रह्मा के मंत्र को गुनगुनाने वाला भी सभी ने मिलकर बगावत की। काबिल जिक्र है कि मेरठ में 10 मई 1857 को जिन देसी सिपाहियों ने बगावत का आलम बुलंद किया था, उनमें 49 मुसलमान और 36 हिंदू बिरादरान वतन थे, जिनकी निगाहों में मुगल बादशाह बहादुर जफर मरकजी हैसियत रखते थे। बहर कैफ तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वालों की एक लामतनाई फहरिस्त है, जिनमें अजीम मुर्द मुजाहिद मौलाना अब्दुल जलील इसराइली भी शामिल हैं। जुर्रतमंद, दिलेर और निहायत मुत्तकी शख्सियत के मालिक थे। इनके वालिद रियाजुद्दीन साकिन छतारी एक बड़े आलिम थे, लिहाजा पहले अब्दुल जलील साहब ने उनके सामने जानवे तलमुज़ तय किया और बाद दिल्ली जाकर शाह रफ़ीउद्दीन और शाह मोहम्मद इसाक से तालीम पाई। मौलाना अब्दुल जलील के बारे में कैनी शाहिद अंग्रेज़ लिखता है कि ये एक इंतहाई हौसलामंदाना तर्ज की दस्ते बादस्त लड़ाई थी, जिसमें तकरीबन 60 गाजी जोश और गुस्से से दीवाना वार होकर तलवारों हाथों में लेकर झपटे, मगर वो सब काम आ गए। इनमें अलीगढ़ का मौलवी अब्दुल जलील भी शामिल था, जो मुसलमानों के मजहबी तासुब को हवा देने में सबसे ज़्यादा मोहरित था। मेरठ के हंगामे की इत्तला 12 मई को अलीगढ़ पहुंची, जो उस वक्त 9 नंबर रेजिमेंट का मरकज़ था।
खबर मिलते ही कलेक्टर वाटसन ने तहसीलदार और कोतवाल को नाकाबंदी का हुक्म दिया और मेजर इलेड ने शहर में मुखबर को जाल बिछा दिया। इसी असना में बुलंदशहर से एक ब्राह्मण नारायण छावनी में आया, जिसने देसी से पका कंपनी हुकूमत के खिलाफ बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पलटन के 2 सिपाहियों ने मुखबरी करके उसे पकड़वा दिया, जिसकी पादाश में इस इनकलाबी को फांसी दी गई। तख्तेदार पर इस पर लटकते मुर्दा जिस्म को देखकर एक देसी सिपाही ने तमाम सिपाही को ललकार कर कहा, दोस्तों ये शहीद खून में नहा गया, ये हमारे दीन पर कुर्बान हो गया। साथी की बातें सुनकर सिपाहियों को अपने एहसास जब्त करने मुश्किल हो गए। उनकी आंखों में आके शोले देखकर अंग्रेजों में भगदड़ मच गई। अदालतें जला दी गई और जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। बिलखुसूस डाक बंगले के खानसामा रसूल खां और गार्ड मीर खां की सरपरस्ती में डाकखाने की एक बड़ी बैलगाड़ी को लूट लिया। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। गर्ड्स के 20 मई को अंग्रेज़ों से शहर खाली हो गया। अलबत्ता 4 जून तक कंपनी हुक्काम और मुजाहिदीन के दरमियान शह मात का खेल जारी रहा। मौलाना अब्दुल जलील ने 20 जून 1857 को दिल्ली जामा मस्जिद में जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद नज़्म ज़ब्त के लिए 4 जुलाई 1857 को मुसलमान और हिंदू मोअज़्ज़िज़ीन ने कोतवाली मीटिंग की, जिसमें आपसी रजामंदी के बाद एक पंचायत कायम की गई, जिसमें मुंशी दयाशंकर, डिप्टी कलेक्टर लाला छोटेलाल, नंद किशोर, जान यास्कर शंकर वगैरह और सरपंच मुंशी वगैरह दयाशंकर बनाए गए। 6 जुलाई को डॉक्टर करीम बख्श, जिन्होंने नवी पलटन में बगावत की थी, वो कोतवाल शहर बनाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद साहब। सभी को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं जलसे में शरीक हो रहा हूँ और मुझे एक मौका मिला यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर पाया। तो ये वाकई ये फ़ख्र की बात है। यहाँ अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ विद्वानों ने कुछ बातें पेश की और कुछ जिलों का जिक्र हुआ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिलों का कप्तान हूँ। बागपत की जिक्र रही तो बागपत में जैसे यहाँ पे मुझे पता चला कि 73 शहीद हुए थे, इसमें मौलाना जलील और उनके साथ 72 और लोग थे। कईयों के नाम नहीं पता है। इसी तरह बागपत में एक बिजरौल गांव है। बिजरौल गांव में एक पेड़ है, पेड़ से करीब 33 लोगों को फांसी लगाई गई थी। उसमें कईयों के नाम वहाँ के लोगों को नहीं पता है। बाबा शामल का नाम पता है, उन्होंने बागपत में गदर मचाया था और अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया था। बड़ौद तहसील को फ्री कर दिया था 1857 में। एक बिलोचपुरा गांव है, वो भी बहुत फेमस है। वहाँ भी हर साल मनाते हैं इसी तरह, जिस तरह आप लोग जलसा कर रहे हो वो लोग भी जलसा। सोद भी है। तो बागपत में मतलब बहुत सारे गांव ऐसे थे जहाँ पे इस तरह की क्रांति हुई, इस तरह का गदर हुआ और अंग्रेज़ों को उन्होंने बाहर कर दिया और काफ़ी समय तक फ्री भी रहा बागपत। फिर उसके बाद अगेन बैक टू सर सैयद। साइंस जहाँ आती है तो जीत उसी की होती है जिसके पास साइंस होती है, जिसके पास टेक्नोलॉजी होती है। 1857 के जस्ट पहले टेलीग्राफ अंग्रेज़ों ने इंडिया में ले आए थे, 1853-1854। उस टेलीग्राफ से दिल्ली से पंजाब एक मैसेज जाता है और फिर पंजाब से लॉरेंस और उसके लोग आते हैं दिल्ली को रीइंफोर्समेंट मिल जाता है और दिल्ली में हमारे लोग हार जाते हैं। तो क्या किसका साइंस का मेन रोल था कि अगर टेलीग्राफ नहीं होता उस टाइम या कुछ सालों बाद होता तो शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन के साथ तो कोई नहीं कह सकता, शायद हम लोग आज़ाद उसी टाइम में 1857। लेकिन साइंस की अहमियत शायद हम लोग उस समय नहीं जानते थे। धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नेशन होता, लगता है हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो इतना बड़ा देश है, हम इतने लोग हैं, हमारे कौन छोटा सा इंग्लैंड है, अभी भी आबादी शायद 7 या 8 करोड़ है, हम लोग 140 करोड़ हैं। लेकिन बात संख्या की नहीं होती, बात साइंस की होती है, बात टेक्नोलॉजी की होती है। हमेशा ऐसा हुआ है कि जो बड़े बड़े सिविलाइजेशन हुए हैं बहुत ही छोटे लोगों से हार गए, बहुत ही छोटी सेना से हार जाते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको ग्रेट कहते हैं, जिस देश का है उस देश को आप यूरोप में दिखा नहीं सकते हो मैसिडोनिया कहाँ पर। ग्रीस को देख सकते हो लेकिन वो मैसिडोनिया का था। शायद आप बहुत कम लोग देख पाए कि वो कहाँ पर। और उस अलेक्जेंडर ने 2300 साल पहले उस समय के नोन, जिसको नोन वर्ल्ड कहते हैं, उसने फतेह हासिल की थी, इंडिया को छोड़ के ऑफ कोर्स। उसने ईरान का जो सबसे बड़ा साम्राज्य था उस टाइम,
मतलब उस समय ईरान को ही माना जाता था, पर्शिया का था ग्रेट सिविलाइजेशन, और वो 2 युद्ध में हार गया, बैटल ऑफ ईसस एंड बैटल ऑफ गॉगेमाला, केवल 2 युद्धों में। और अलेक्जेंडर के पास क्या थे, मेरे ख्याल से 35 से 40 हज़ार सेना, बस इससे ज़्यादा नहीं थी उसके पास। और इनके पास एक स्टेब्लिश सभ्यता थी पर्शिया के पास, लेकिन हारे। क्यों हारे? क्योंकि कुछ डेडिकेटेड लॉयल लोग एक कॉज के लिए, और उनके पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और साइंस होती है, तो वो जीत जाते हैं। सेम चीज़ चंगेज़ खान ने की। उसके पास क्या? उसके पास गोला बारूद आ गया था, उस समय किसी के पास नहीं था। और छोटा सा देश है मंगोलिया, अगर आप अभी भी गूगल करोगे, मंगोलिया की आबादी 50 लाख भी नहीं है आज की तारीख में, नॉट इवन 50 lakhs। लेकिन मंगोलिया ने कहाँ फतेह हासिल कर ली? पूरा चाइना, पूरा मिडिल ईस्ट, कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका और पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप, सब उसने जीत लिया। और कई सालों तक उनकी हुकूमत रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय का जो भी साइंस थी उस पर अपना उन्होंने कंट्रोल किया था। सेम चीज़ अंग्रेज़ों ने की। उनके पास सबसे बड़ी नेवल पावर थी, हम लोगों ने नेवल नेवी को उतना ध्यान नहीं दिया, और नेवल पावर के बतौर, और फिर बाद में उनके बहुत सारे इन्वेंशन हुए, सब चीज़ें हुई, उसके कारण हम पे उन्होंने शासन किया 30 साल। 1857 में हम सब लोग एक थे, कोई डिवीज़न नहीं था। और इसी का कारण है कि जब बातें हुई कि भाई सब एक साथ लड़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, हमारे यहाँ झांसी की रानी सब ने नाम सुना। उनकी मदद करने के लिए लाल कुर्ती पठान मिलते हैं यहाँ से, पश्चिम से, जबकि उनका झांसी से कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब झांसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको लगा था कि यहाँ से भी कोई लड़ रहा है देश के लिए, तो वो देश के लिए लड़ने आए, वहाँ पे शहीद हुए वहाँ। तो जहाँ जिसको मौका मिला, जिस कैपेसिटी में मौका मिला, उसने वो मौका पूरा निभाया। अगेन मैं बिजनौर आता हूँ, बिजनौर का भी एसपी रहा, सर सैयद के बारे में वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। और बिजनौर की जेल में बहुत सारे, बिजनौर की जेल भी बहुत पुरानी जेल है, बहुत पुरानी जेल है, बिजनौर जिला भी बहुत पुराना है। उस जेल में भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैद किए गए थे। तो उसका 2-3 साल पहले वहाँ के जेल अधीक्षक थी, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी और एक स्मारक बनाया था कि कौन कौन वहाँ पे जेल में बने थे। हरदोई की मैं बात करूँ, हरदोई का भी एसपी हूँ। हरदोई में एक नरपत सिंह साहब थे, राजा साहब थे, मल्लावा के आसपास उनका गांव, और वहाँ अंग्रेजों से शासन हुई, लड़ाई हुई 1857 में। उन्होंने अंग्रेजों को पहली लड़ाई में हरा दिया। तो वहाँ के लोग बताते हैं, मैंने कब्र वो खुद देखी, एक अंग्रेज के मेरे ख्याल से एक कैप्टन और 4 लेफ्टिनेंट की वहाँ पे कब्र, संरक्षित कब्र, वो सब लड़ाई में मारे गए थे। और उसमें एक क्वीन विक्टोरिया का बिल्कुल क्लोज रिलेटिव था जो मारा गया था। हर जगह जितना कैपेसिटी थी, जितनी जागरूकता थी, जितनी एकता थी, जितनी शक्ति थी, उन लोगों ने किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो मैं वाकई आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोग को मैं बहुत ही प्रशंसा करने लायक तो नहीं हूँ, मैं शुभकामनाएं देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों ने जलसा किया और इसको करते रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनके वंशज जीवित हैं कि नहीं जीवित, लेकिन हम सब इनके वंशज हैं। उन्होंने ये सब हम हमारे लिए किया, किसी और के लिए नहीं किया। जब ये मर रहे हैं, इनको थोड़ी पता है कि इसके बाद देश का क्या होगा। हमारे लिए मर रहे हैं, हमारे आने वाली पुश्तों के लिए उन्होंने सब कुछ किया। तो हम लोग को ये भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। वो चाहे शहीद किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, हमारे लिए शहीद हुआ, किसी बिरादरी का नहीं होता कोई शहीद, सब के सब होते हैं। मेरी दादी बताती हैं, क्योंकि ये सब किताबों में नहीं होता, दादी बताती हैं कि गांव से रोटियां जाती थी, गांव से फूल जाते थे, एक फैमिली से दूसरे फैमिली, एक कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बाद लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो मेरठ में 10 मई से शुरू हुआ हो, हर जगह पे अलग अलग तारीख पे शुरू हुआ था। पूरा यूपी तो बिल्कुल पूरी तरीके से शामिल था, बाकी कुछ स्टेट्स कुछ हद तक शामिल थे, लेकिन यूपी पूर्ण रूप से शामिल था। और हर जगह लोग कहते हैं कि दिल्ली से लेके मेरे ख्याल से बनारस तक कि हो सकता अतिशयोक्ति हो, लेकिन दिल्ली से बनारस तक जो भी हाईवे है, उस हाईवे में कोई पेड़ ऐसा बाकी नहीं था जिसमें फांसी न लगाई। वहाँ के किनारे जितने भी गांव थे,
उस गांव में जितने भी एडल्ट लोग थे, जवान लोग थे, वो बचे नहीं थे। और कई मतलब कुछ अंग्रेजों की किताब मैंने पढ़ी, उसमें कहा है कि वो कई महीनों तक उनकी डेड बॉडीज टंगी हुई थी। उन गांव वालों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको क्रिमेशन करा दें या उनको दफना दें। उनकी हिम्मत ना, इतना खौफ हो गया था। 1857 से लेकर 1858 59 2 साल तक बहुत ज़्यादा था। और ये हम सब लोगों को जानना चाहिए कि किन हालातों से हम लोग निकले हैं और यहाँ तक आए। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने खून बहाया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ उसमें अनडॉक्यूमेंटेड। मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि हमेशा ये जलसा होता रहे, जिससे कि सभी आने वाली पीढ़ियों को पता चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Thank you very much, sir, for your motivational and inspiring thoughts. और मुझे खुशी है कि इनकलाबी तारीख में आपका जो इल्म है, आपकी जो नॉलेज है, वो भी काबिल मुबारकबाद है। चूँकि आपने बिजरौल का जिक्र किया, बागपत का जिक्र, तो मेरा ताल्लुक बागपत से, राहत भाई का ताल्लुक बागपत से है। और चूँकि वो जो इनकलाबी गाँव बड़े फेमस हैं जी, रटौल, बिजरौल और बसौत से चूँकि हम लोगों का ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर। और जो आपने हिदायत दी है कि इस तरह के जलसे होते रहने चाहिए, इनकलाबियों को, क्रांतिकारियों को हम अपनी खराज अक़ीदत पेश करते रहें।